Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Shalom to each one. हर एक को शांति मिले। God give you peace. परमेश्वर आपको शांति दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Before meditating word of God, let's close our eyes and let's pray. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें और आइए प्रार्थना करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं। Thank you for once again you have gathered us. फिर से एक बार आपने हमें इकट्ठा किया, आपका धन्यवाद। Thank you for this new day. यह नए दिन के लिए आपका धन्यवाद। Bless us. हमें आशीष दो, Give us strength. हमें सामर्थ दो। Speak through your word. आपके वचन से हमारे साथ बात करो। As we are meditating your word, जब हम आपके वचन का मनन कर रहे हैं we need grace. तो हमें अनुग्रह की जरूरत We है। need Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Yes, we need the teacher. हाँ, हमें शिक्षक की जरूरत है। Open our eyes हमारी आंखें खोलो so that we can see your glory. ताकि हम आपका महिमा देख सके। Open our ear हमारे कान खोलो so that we can be able to listen you. ताकि हम आपको सुनने के योग्य बने। Touch our heart. हमारे हृदय को छुओ। Let your word abide in our heart. आपका वचन हमारे हृदय में जुड़ा रहे। We want to say amen to your word. आपके वचन के साथ हम आमेन कहना चाहते We want हैं। to join with your wisdom. आपके ज्ञान के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। We want to be with you in one spirit. आपके साथ हम एक आत्मा होना चाहते हैं। Talk to us and teach us. हमारे साथ बात करो और हमें शिक्षण दो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Let's say amen. आइए आमेन कहे। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Good morning. सुप्रभात। This is another 16th parable of gospel of Jesus Christ. यह सुसमाचार का एक 16वां दृष्टांत है, यीशु मसीह का दृष्टांत। Matthew 25 chapter मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 14 to 30 verse. 14 से 30वां वचन। Jesus gave a parable. यीशु ने एक दृष्टांत दिया। He said यीशु ने कहा, there was a man एक मनुष्य था and he was going to travel. और वह On his travel. परदेश जा रहा था। Before going, he called his servants और जाने से पहले उसने अपने दासों को बुलाया and gave his property to take in charge. और अपनी संपत्ति उनको दी कि संपत्ति का ध्यान रखे। You take care of my property, कि तुम मेरी संपत्ति का ध्यान for I'm रखो going abroad क्योंकि मैं विदेश जा रहा हूँ and I will return back soon. और मैं जल्दी वापस आऊंगा। And he trusted his servants और उसने अपने दासों पर भरोसा किया and he hand over what he had. और उसके पास जो था वह अपने दासों के हवाले किया। To one he gave 5 talent एक आदमी को उसने 5 तोड़ दिए as his ability. उसकी क्षमता के अनुसार। Another he called and gave 2 talent और दूसरे को बुलाकर उसने 2 तोड़ दिए and he according to his ability. उसकी क्षमता के अनुसार उसको भी दिया। And another he gave 1 talent. और एक को बुलाकर उसे 1 तोड़ दिया। So he called this is a story. He called his servants so that he can distribute what he had. उसने अपने दासों को इसीलिए बुलाया ताकि उसके पास जो था वह दासों को बांट कर दे। He thought that these my servants are faithful to me. उसने सोचा कि अब मेरे दास मेरे साथ वफादार है And he wanted that they take care of what I have given them. और वह चाहता था कि मैं उन्हें जो देता हूँ उनकी वह संभाल रखे। And later on this master, this rich man, he went away. और उसके बाद यह जो मालिक जो धनवान व्यक्ति था वह चला गया। And as this master went, और जैसे यह मालिक गया, verse 16 it says, straightway the one who had 5 talent, he traded with them and made another 5 talents. 16वां वचन कहता है कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। As he got that 5 talent, he just straightway back went and trade. जैसे उसने वह 5 तोड़े पाए तुरंत ही वह चला गया और उसका व्यापार किया। Immediately he started to merchandise or he started the business तुरंत ही उसने उसका व्यापार शुरू किया and gained more 5 talent. और अधिक 5 तोड़े उसने पाए। And same like the another who had 2 talent who received, he also gained 2 more. इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी और 2 कमाए। But the one who had 1 talent, परंतु जिसको 1 तोड़ मिला था,
he digged in the earth, he dug under the ground and he hid that talent. उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने वह रुपया वह तोड़ जो उसे मिला था उसे छुपा दिया. So here the word in 18 it says he hid the money that master gave. तो 18वां वचन कहता है कि मालिक ने जो पैसा दिया था उसे उसने छुपा दिया. So here we read Jesus gave a word for talent, it's money. तो यहाँ पर Jesus said that talent was the money. यीशु ने जो तालन दिया या तोड़ दिया वह पैसा था. So here what is talent? तो यहाँ पर वह तोड़ कौन क्या है And who are the servants? और सेवक दास कौन है. And who is that person who has dug in the ground and hide that money? Who is that और one? वह दास कौन है जिसने जमीन में खोदकर वह पैसा छिपा दिया. And who is the master who is going to come back? और मालिक कौन है जो वापस आने वाला What है. is the talent? और यह तालन तोड़ क्या है. So from Matthew 25 chapter 14 to 22 verse. तो मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 14 से 21वां वचन. Okay, it's 30 verse till 30 verse. 30वें वचन तक. So if you read, you can know this story. यदि आप पढ़ो यहाँ तक तो आपको यह कहानी पता Okay, चलेगी. let's read. आइए पढ़े. For kingdom of heaven is like a man going on a journey. Verse 4. 14. Okay. 14. Okay. Yes, verse 14. For it is like a man who going on a journey. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. He called his servants and entrusted them and with his possessions. उसने अपने दासों को बुलाया और अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी. To one he gave okay, 5, another he gave 2, another he gave 1 talent. एक को उसने 5 तोड़ दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया. Each according to their ability. हर एक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया. So here we see this master is giving talent according to the people and servants' ability. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मालिक अपने दासों की क्षमता के अनुसार उन्हें तालंत या तोड़ देता If है. a person is a weak person, we cannot give him much burden to bear. यदि कोई कमजोर व्यक्ति होता To है carry. तो उसे हम उठाने के लिए ज्यादा बोझ नहीं दे सकते. If it is a child, we don't give a big burden to carry on his back. यदि We know कोई that. छोटा बच्चा हो तो उसकी पीठ पर हम वजनदार ज्यादा सामान नहीं देते उसे उठाने के लिए. So this master very well know who is able to take care of my property. तो यह मालिक अच्छी तरह से जानता है कि मेरी संपत्ति की देखभाल अच्छी तरह से कौन कर पाएगा. And there are all servants in this master's house. और यह मालिक के घर में सब दास है. No one give you much salary if you have poor education. यदि आपकी शिक्षा या शिक्षण का कम है या कमजोर है तो आपको कोई ज्यादा पगार नहीं देता है. No one give you much task that you cannot complete even. और आप पूरा ना कर सको ऐसी कोई परीक्षा भी आपको नहीं देता है. And no one can even order that you cannot follow. और जो आदेश का पालन ना कर सको ऐसा कोई आदेश भी नहीं देता. If you are weak, you cannot be invited in race. यदि आप कमजोर हो तो स्पर्धा में आपको कोई नहीं बुलाता है. If you are not, if you cannot wake whole night, no one give you night duty. That is reality. यदि आप पूरी रात जाग नहीं सकते तो पूरी रात को जागने की नौकरी कोई आपको नहीं देता. यह वास्तविकता है. If you cannot see properly, no one can give you seat to drive. और यदि आप अच्छी तरह से देख नहीं सकते तो कोई भी आपको वाहन चलाने के लिए नहीं देगा. So this talent or the property was given to the people who were capable. तो यह जो तोड़ था वह संपत्ति उन लोगों को दी गई जो सक्षम थे. So the master very well know who have very good strength and who are weak.
तो मालिक अच्छी तरह से जानता है कि किनके पास ज्यादा क्षमता है और कौन कमजोर है। In verse 27 verse, और 27वां वचन, when the master came back, जब मालिक वापस आया, he saw the 5 talent who had gained more 5. He praised him. Yes. मालिक वापस आया तो जिसको ज्यादा तालन दिए थे उसे देखा कि उसने उसका ज्यादा बनाया था, And he praised that servant. और इसकी वजह से उस दास की उसने प्रशंसा की। And who received 2 talent, and he merchandised and brought more to, he was even praised, said, you are faithful, good servant. और जिसको 2 दिए गए थे उसने भी व्यापार करके और 2। So as the master know his servant, he gave, he called these servants and gave them talents. तो मालिक अपने चाकरों के बारे में जानता था, उनके अनुसार उनको बुलाकर उनको तोड़ दिए। He know their ability and their strength even. मालिक दासों की क्षमता और उनका सामर्थ्य भी जानता था। Now this talent is money. How can we know this? अब यह जो तोड़ है यह पैसा है, हम कैसे जान सकते Verse हैं? 27. 27वां वचन, The master advised the one who had not gained or not double the money that master gave. मालिक ने उस दास को यह सलाह दी कि जिसको मालिक ने दिया था उसने उसका व्यापार करके दुगना नहीं किया था। Now when master came, he gave advice to this foolish servant. अब मालिक ने वापस आकर यह मूर्ख चाकर को यह सलाह दी, You got much time, तुझे ज्यादा समय मिला but you are a lazy fellow. लेकिन तू आलसी व्यक्ति है, And it would be better that you should deposit my money in the bank. तो तुझे बेहतर यह रहता तेरे लिए कि सराफों को जाकर तू मेरा पैसा देता। And when I would come back after time, और तब मैं आकर जब समय के बाद आता, then I would receive it with interest. तो मेरा धन मुझे ब्याज समेत मिलता। But you didn't use your mind. लेकिन तूने अपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया। So here we see this talent is Jesus compare it with money. तो हम देखते हैं कि यह जो तोड़ है उसकी तुलना यीशु पैसा के साथ करते हैं। Many people say that this 1 talent or it was equal to 16-year worth labor. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यह जो एक तोड़ दिया गया वह 6000 So 1600 year labor it was. 16 year labor. 16 साल की जो मजदूरी मिलती है उसके बराबर था। So this master very well know that what I am giving, they have much time, and for long year when I will come back, they might gain profit. तो मालिक जानता था कि मैंने जो दिया है उसके लिए उनके पास बहुत सारा समय बचा है, और जब बहुत समय के बाद मैं वापस आऊंगा तो उनके पास से मुझे फायदा मिलेगा। 1 talent of silver is equal to 45 kg. This is a measurement of to weight. वजन का यदि हम नाप देखें तो 45 एक जो तोड़ होता है चांदी का वो 45 किलोग्राम के बराबर है। And 1 talent of gold is equal to 91 kg. और सोने का एक तोड़ का वजन 91 किलोग्राम के बराबर होता है। So what type of talent or this master gave, it is not mentioned here. तो किस तरह का तोड़ मालिक ने इनको दिया है यह यहाँ नहीं लिखा गया है। Silver coin or gold coin. चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का। But 1 talent is about 600 denarii. लेकिन एक जो तोड़ है 6000 denarii. वह 6000 दिनार के बराबर है। So here when Jesus said that there was a master, he went for travel and he called his servant and gave this money. तो यहाँ पर यीशु ने कहा कि एक मालिक था, वह परदेश गया और अपनी संपत्ति अपने दासों को दिया व्यापार करने के लिए। Many people say this talent is inbuilt gift of God in every man. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यह जो तालंत या तोड़ तो वह है जो परमेश्वर ने पहले से मनुष्य के अंदर It's inbuilt talent, inbuilt gift.
कोई ऐसा तालंत है या उसे दिया हुआ कोई ऐसी भेंट है, वरदान है। yes, some can draw easily. They are good artists from the birth. कुछ लोग अच्छे से चित्र काम कर सकते हैं, जन्म से ही वे अच्छे कलाकार Some होते have हैं। talent to sing better or beautiful they sing. और कुछ लोगों के पास अच्छे से गाने का सुंदर रीति से वे गा सकते हैं, यह दान होता है। Some can play very well instrument. कुछ लोग बजाने के बाजे बहुत अच्छे बजाते हैं। So people call this skill as talent. तो लोग इस ये जो सौगात मिलती है या जो भेंट है, दान है, उसे वरदान या दान कहते हैं, तोड़ कहते हैं। Whatever skill they are having. उनकी जो कुछ भी सौगात है। Yes. So personally everyone have ability to do something. तो हर एक के पास कुछ करने की ऐसी योग्यता होती है। And people they preach that this talent everyone are having. और लोग ऐसा सिखाते हैं कि इस तरह का हुनर हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। And God has gifted you with many talent. और परमेश्वर ने आपको बहुत कौशल्य या हुनर से वरदान दिया है। You should use it for glory of God. और आपको परमेश्वर की महिमा के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। Every people are talented in some or another way. हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई रीति से कोई ना कोई हुनर होता है। So people interpret this parable with man's inbuilt skill. तो लोग इस दृष्टांत को ऐसे बताते हैं कि मनुष्य को जो पहले से हुनर मिला गया है या वरदान दिया गया है, उसे यह दान दिखाता है, यह तालन दिखाता है। ऐसा And कहते हैं। many interpret this talent as gift of God or grace gifts. और बहुत When you लोग come in Christ, you receive some gifts. और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यह तोड़ तो वह है कि जब आप मसीह में आते हो तो आपको परमेश्वर की कृपा में उसकी ओर से कुछ वरदान मिलता है, वह है। These are all grace gifts that you operate to do ministry. ये सारे अनुग्रह के वरदान है, सेवकाई के काम के लिए काम आते हैं वह। So Holy Spirit gives such talent that you are able to preach gospel. तो पवित्र आत्मा ऐसे वरदान हुनर आपको देते हैं कि You आप preach gospel. सुसमाचार का प्रचार करो You edify the church. और आप कलीसिया की उन्नति करो, Serve the Lord and bring soul to the Lord. प्रभु की सेवा करो और दूसरे लोगों को प्रभु में लाओ। So people say these are the gift of God that Jesus went to heaven and gave it to his disciple or to his servants. तो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रभु स्वर्ग में गए तो उसके बाद ये सारे वरदान अपने संतों को, अपनी कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने दिए। To the church he gifted this all 9 gifts. कलीसिया को उसने ये सारे 9 वरदान दिए। There are many gifts, grace gift. अनुग्रह के बहुत सारे ऐसे वरदान हैं। Many say that these are the fivefold ministry. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि 5 प्रकार की जो सेवकाई है यह वह है। Some have received this minister gifts. किसी ने यह सेवक की पदवी का वरदान पाया है। Some have received pastor gift and some have received prophet gift. 2 talent they have received. कुछ लोगों को पासबान का वरदान मिला है और भविष्यवक्ता का भी वरदान मिला है, उनको 2 तालंत मिले हैं। So people compare this talent with these ministries. तो लोग इस तोड़ को, तालंत को सेवकाई के साथ तुलना करते हैं। Everyone are having one gift and that is evangelism gift. और हर एक के पास एक तोड़ है, तालंत है, और वह सुसमाचार का दान है। And if you don't go and preach word of God, then you are hiding that talent. और यदि आप जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करते हो तो वह वरदान को आप छिपा कर रखते हो। So some are evangelists, they are having evangelist gift. तो कुछ लोग सुसमाचार देने वाले लोग होते हैं, उनको सुसमाचार का वरदान मिला है। And some are prophet and some are pastor, 2 talent. और कुछ लोग भविष्यवक्ता होते हैं और पासबान भी होते हैं, उनके पास 2 तालंत And होते some हैं। are having 5 blessing upon them. और कुछ लोगों के ऊपर 5 आशीषें होती है, 5 वरदान होते हैं। 5 talent. They are gifted with 5 talent. उनको 5 तोड़े मिलते हैं। As Paul was apostle, he was even prophet, he was even pastor, teacher, an evangelist. जैसे पौलुस एक प्रेरित थे और भविष्यवक्ता थे और वह पासबान भी थे
और सुसमाचार देने वाले भी थे और एक शिक्षक भी थे। So he was gifted with fivefold. He was having 5 talents. तो पौलुस के पास 5 तोड़े थे। So people they interpret this talent with this gift. तो लोग इस तालंत को ये सारे वरदान के साथ तुलना करते हैं। Now what we learn and what we understand. अब हम क्या सीखते हैं और क्या समझते हैं? Jesus is the master who went abroad. यीशु मालिक है जो परदेश गया। And in Acts it says, first chapter, प्रेरितों के काम पहले अध्याय में ऐसा कहा है, when Jesus Christ was being lifted up to heaven. यीशु मसीह को जब स्वर्ग में वह ऊपर उठा लिए जा रहे थे, In Acts first chapter verse 21, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 21वां वचन, the disciple they were gazing up to heaven, तब चेले स्वर्ग की ओर आंखें ताक कर देख रहे थे। and the angel they said, और वह स्वर्गदूत थे, उन्होंने कहा, this Jesus who received up from you into heaven shall come in like manner as ye beheld him going into heaven. Verse 11. Sorry, it's verse 11. माफ करना 11वां वचन, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। So who is this one man who went abroad and he is returning? तो यह एक मनुष्य कौन है जो परदेश गया और फिर वापस आ रहा So है? Jesus was talking about himself. यीशु मसीह अपने बारे में एक बात कर रहे थे। When he was taken up to heaven, he blessed his disciple. जब यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा, वह स्वर्ग में जा रहे थे, तब अपने चेलों को आशीष दे रहे थे। And he said, now go and preach the word of, go and preach the gospel. और यीशु ने कहा कि अब जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। And immediately the disciple they went out and they preached the gospel. और तुरंत चेले बाहर गए और सुसमाचार सुनाया। They received Holy Spirit and they started preaching. उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और सुसमाचार देना शुरू किया। To win the soul, this was the ministry of the disciple. आत्माओं को जीतना यह चेलों की सेवकाई थी। Jesus said to Peter that I'm making you pastor over my flock. You take care of this flock. यीशु ने पतरस से कहा था कि मेरे झुंड के ऊपर मैं तुझे पासबान बना रहा हूँ, तू उनकी संभाल रखना। So this Peter was appointed as pastor over this 11 disciple. तो पतरस को यह 11 चेलों के ऊपर पासबान बनाकर रखा गया था। Many might have you might receive 2 souls to save them or to take them to heaven. आपको शायद 2 आत्माएं दिए जाए कि आप उनका ध्यान रखो और उनको स्वर्ग तक ले जाओ। To save them. उनको आप बचा लो। Till Lord return, you should take care of 2 souls. प्रभु वापस आए तब तक आप केवल 2 आत्माओं की संभाल रखो। Many might given 5 souls to take care. बहुत लोगों को शायद 5 आत्माएं दी जाए कि 5 आत्माओं का वे ध्यान रखें। So this talent is compared to money, and that the Bible says, Lord, people are the treasure of God. तो यह तोड़ की तुलना पैसा के साथ की गई है और बाइबल बताता है कि प्रभु के लोग वह धन है। In Deuteronomy, व्यवस्था विवरण की किताब 7 chapter verse 6, 7वां अध्याय 6वां वचन, because O Israel people, you are holy people to the Lord your God. क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, हे इजरायली लोग। The Lord your God chose you to be his people. यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा बने। You are his treasure, possession from all the peoples on the face of the earth. और पृथ्वी भर के सब देशों में से तू उसकी प्रजा और उसका निज धन ठहरे। So with people, to people, your God comparing with treasure.
तो लोगों को यहाँ परमेश्वर धन के साथ तुलना करते हैं। When Jesus Christ, he came on the earth, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, before that there was promise to Jesus Christ. उससे पहले यीशु मसीह को वचन दिया गया In था। Psalm 2nd chapter verse 8, भजन संहिता 2 अध्याय 8वां वचन, God said, you will be my son and I will be your father. परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा बेटा बनेगा और मैं तेरा पिता बनूंगा। So we are going to play one role. तो हम एक Okay. हम दोनों को एक अलग अलग काम करना है। हम दोनों एक Yes. भूमिका अदा करेंगे। Yes. I will be your father कि मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा and you will be my son. और तू मेरा बेटा बनेगा। And then ask me, I will give you the Gentile for thy inheritance. और उसके बाद तू मुझसे मांग तो मैं अन्य जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दूंगा And the uppermost part of the earth for thy possession. और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। So God said, the property what I am holding, I am going to give you, and that are the people. तो परमेश्वर कहते हैं कि जो संपत्ति मेरे पास है वह मैं तुझे देने वाला हूँ और यह संपत्ति तो लोग है। In Yeshaya 53 and verse 12 verse, यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय 12वां वचन, this is about Jesus Christ. यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया So है। I will give many people to him, God says, परमेश्वर कहते हैं इस कारण मैं उसे बहुत सारे लोग दूंगा and he will have the strong people as his gift. और सामर्थियों के संग लूट बांटेगा, Because he has poured his life until he died. क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु तक उंडेल दिया। So here God said, I am going to give him property and that are the people. तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे संपत्ति दूंगा और वह संपत्ति तो लोग है। So we say the talent are the people or the soul. तो हम कहते हैं कि जो तालंत या तोड़ दिया गया है वह तो आत्माएं है या लोग है। So the master, before going to abode, he called his faithful servants and gave them to take care of the people. तो मालिक ने परदेश जाने से पहले अपने विश्वास योग्य चाकरों को बुलाकर अपने लोग उनको दे दिए। So he gave the money, and that is that are the soul. और मालिक ने उनको यह धन दिया और यह तो मनुष्य लोग है। The treasure or the talent are the people. यह संपत्ति या यह तोड़ यह तो लोग है। Some receive 5 souls to take care till that Lord come back. प्रभु वापस आए तब तक कुछ लोगों को 5 ऐसे तोड़ मिले, 5 मनुष्य मिले। And when that master came back, और जब वह मालिक वापस आया, in Matthew 5 chapter verse 20, मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय 20वां वचन, the servant who has received 5 talent, he came and presented 5 more. कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उस चाकर ने 5 तोड़े और लाकर दिखाया और दिया। He presented more 5 people along with this 5 soul. उसको जो 5 आत्माएं दिए गए थे उनके साथ दूसरे 5 मनुष्य को भी वह लेकर आया और दिखाया। So the master, he praised this servant. तो मालिक ने उस सेवक की प्रशंसा He की। replied, well done, good and faithful servant. उसने कहा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, You have been faithful with few things. तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है। I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो जा। The one who had received 2 talent, he even came, he too come. जिसको 2 तोड़े मिले थे वह भी आया And he said, और उसने कहा, Master, you entrusted me with 2 talent. You trusted me that I am going to do something with this 2 talent. And look, I have gained more too. और उसने कहा कि ये स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे और मुझ में भरोसा किया था, तो देख मैं 2 और तोड़े भी कमा कर लाया हूँ And the minister- और तुझे वापस देता हूँ। So here we see, verse 23, he also was praised, saying, good and faithful servant. Well done. 23वें वचन में देखते हैं कि स्वामी ने इस दास की भी प्रशंसा की और कहा कि धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य You दास। are faithful
with the few things. तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा I'll है, put you to in charge of many things. Enter into the joy of your master. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। So if someone compare this talent with gift, any physical ability gift, तो यदि कोई इस तोड़े की तुलना कोई हुनर के साथ या शारीरिक कौशल्य के साथ करता है, if he is fastest runner, यदि वह दौड़ने में सबसे तेज है, what will he do? How he will have two runner? तो फिर वह अपनी स्पर्धा का दो डबल कैसे करेगा? दो दौड़ने वाले, How will he एक का make दो दौड़ने two? वाला कैसे बनाएगा? If he is good in piano playing, और यदि वह पियानो बजाने में अच्छा है, if someone say this is the talent of God, और यदि कोई ऐसा कहे कि यह तो परमेश्वर की ओर से तोड़ है या तालंत है, what do you think? He is going to play with two hands? तो आप क्या सोचते हो कि वह व्यक्ति क्या दो हाथों से बजाएगा? And he will say, Lord, you came back, look, now I am playing with two hands. और वह ऐसा कहेगा कि प्रभु तू वापस आया, अब देख मैं दो हाथों से बजा रहा हूँ। If someone say, this is my, I have received spiritual gift and that is talent, और यदि कोई ऐसा कहे कि मैंने आत्मिक वरदान पाए हैं और यह तोड़ है जो यीशु ने बोला था, I am pastor and also I am evangelist. मैं पासबान भी हूँ और सुसमाचार देने वाला भी हूँ। Lord, you came back and I have gained more too. प्रभु अब तू वापस आया है और अधिक दो मैंने पाया है। How can you compare this God gift with talent? परमेश्वर के इस वरदान की तुलना आप तोड़े के साथ कैसे कर सकते हो? But it is money लेकिन यह तो संपत्ति है, धन है, and it is compared with people. और यह धन की तुलना लोगों के साथ की गई है। So the master he appointed, the master he gave 5 people to take care, and when he returned, he was pleased to see more 5 were added to these 5 people. तो मालिक ने 5 लोगों को दिया था उस व्यक्ति को संभाल रखने के लिए, और जब वह वापस आया तो मालिक ने 5 की जगह दूसरे और 5 भी देखा, और He was pleased. वह खुश हुआ। If you have responsibility to take care of your family, यदि आपके पास आपको यह जवाबदारी मिली है आपके परिवार की संभाल रखने की, then it is you should show your faithfulness. तो उसमें आपको विश्वास योग्य बना रहना चाहिए। If you have one good friend, यदि आपका एक अच्छा मित्र है, then you should bring him to the Lord. तो आपको उसे प्रभु के पास लाना You should चाहिए, save him. आपको उसे बचाना चाहिए। And if you are having husband, if you are a husband and you are having wife and a child, और यदि आप पति हो, आपकी पत्नी है और बच्चे हैं, तो then you are blessed with two talent. तो आपको वह 2 तालंत मिले हैं और उसके द्वारा आप आशीषित हुए। You have to take care of that 2 soul. वो 2 आत्माओं की आपको संभाल रखनी है। You should equip them and train them well so that they can bring more people to the Lord. तुम्हें उन दोनों को अच्छे से तैयार करना है, मजबूत बनाना है, ताकि वे भी दूसरे लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। So the Lord wanted the people, whatever they have received the soul, they should take care of their soul, and even they should train them well. तो प्रभु चाहते थे कि लोगों को जो दूसरे लोग दिए गए थे उनकी वह अच्छे से संभाल रखे, उनको तैयार करे, और वे जाकर दूसरे लोगों को भी लेकर आए। Now when the master saw this one fellow who had big the talent and did nothing with the talent, अब मालिक ने देखा यह इस व्यक्ति को कि जिसको 1 तालंत मिला था और खड्डा खोद के उसने तोड़े को छिपा दिया था। after years he came back. सालों के बाद मालिक वापस आया। This man was found lazy fellow. और यह मनुष्य जो था वह आलसी साबित हुआ। 3 words Jesus used for this servant. यह सेवक के लिए यीशु ने 3 शब्दों का प्रयोग किया। Lazy, एक आलसी, worthless, और निकम्मा, and evil servant. और दुष्ट दास। He was not faithful to the one which he had to take care. उसे जो संभाल रखने के लिए दिया गया था उसके साथ वह वफादार नहीं रहा। Now this evil servant is
opposing the master. Verse 24. अब यह जो दुष्ट चाकर है वह अपने मालिक का विरोध कर रहा है। Master, because I know you that you are a hard man, and where you are not sow, you reap there, and so I had hidden and the money, and I'm giving you back. 24 और 25वां वचन, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छिटता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, और देख जो तेरा है वह यह है, मैं वापस लाया These हूं। servants say, I was afraid. यह सेवक ने कहा कि मैं डर गया था। So master, he was angry. Verse 26. इसीलिए स्वामी को गुस्सा आया। 26वां And he वचन, said, और स्वामी ने कहा, if you knew that, then I reap where I did not sow, कि तू जानता था कि जहां मैं नहीं बोया करता वहां से काटता हूँ, and where I have not scattered, I gather from there. और जहां मैं नहीं छीटा वहां से मैं बटोरता हूँ। And if really you would have been afraid of me, और यदि सच में तू मुझसे डरता होता तो you would have deposited my money with the bankers. तू मेरे इस पैसा को सराफों को जाकर देता। For when I return, I would have gotten back what mine with interest. तब मैं आकर अपना यह धन ब्याज समेत लेता। So here the master was angry with this lazy fellow. तो यहाँ पर मालिक यह आलसी से दास के साथ गुस्से में था। We too have soul, but we don't use time to preach the word of God to them. हमारे पास भी आत्माएं हैं, लेकिन उनको परमेश्वर के वचन बताने का हम तसदी नहीं लेते, हम समय नहीं निकालते। We are found lazy. इसमें हम आलसी साबित होते हैं। And even Lord, when he come back, he will say, you are an evil servant. और प्रभु जब वापस आएंगे तो वे कहेंगे कि तुम दुष्ट सेवक हो। And if you might say, I have no soul to take care. आप शायद कहोगे कि मुझे कोई आत्माएं नहीं दिए गए थे संभाल रखने के लिए। Then I will say, you are in bank. तो फिर मैं कहूंगा कि आप बैंक में हो। Yes, bank is the church. जो कलीसिया है, बैंक जो है वह कलीसिया है। Where the pastor, he preach the word and he teach the word. जहाँ पर पासवान परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं और वचन को सिखाते हैं। And the soul is kept there to be saved. और आत्माओं को कलीसिया में रखा जाता है उद्धार पाने के लिए। And also he grew up और to be a good servant. और कलीसिया में वे बढ़ते जाते हैं अच्छे सेवक बनने के लिए। And from there he go out and preach the word of God and bring many souls to the Lord. और वहां से वे कलीसिया से बाहर जाते, परमेश्वर का वचन का प्रचार करके बहुत सारे आत्माओं को ले आते हैं। So when someone doesn't send anyone to the church, then he is an evil servant. तो जब कोई किसी को कलीसिया में नहीं संगति में नहीं जाने देता तो वह एक बुरा सेवक है। Because in the church the person is well equipped or trained, and then later on he go out as a trained pastor. क्योंकि कलीसिया में व्यक्ति को अच्छे से तैयार किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, और बाद में वह एक अच्छा पासवान बनकर बाहर जाता है। So it says, Bible says that you should continue to be in fellowship. इसीलिए बाइबल कहता है कि तुम्हें संगति में बना रहना चाहिए। So when the soul you cannot preach, you should send them to Bible study where the word of God is preached. जो लोगों को आप प्रचार नहीं कर सकते, सिखा नहीं सकते, उनको कलीसिया में जहाँ परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है वहां आपको भेज देना चाहिए। So that when the Lord return, ताकि जब प्रभु वापस आए, he receive more soul with that one given soul. तो वह उस एक आत्मा के बदले में बहुत सारे आत्माओं को पाले। So when you too through your ministry, even some have been came to the Lord. तो आपकी सेवकाई के द्वारा भी बहुत सारे लोग प्रभु के पास आएंगे। There are people who trust you. ऐसे भी लोग होते हैं जो आप में विश्वास करते हैं। And God wants that you use your time and energy to bring them to the Lord. और परमेश्वर चाहते हैं कि आपका समय और आपका सामर्थ्य आप उन लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए बिताओ। You build them very well so that they can bring more to the Lord. आप उनको अच्छी तरह तैयार करो ताकि वे बहुत सारे आत्माओं को प्रभु के पास लाए। Verse 27. 27वां वचन, Okay, 28 verse. 28वां वचन, The master was angry with this evil servant.
मालिक को यह दुष्ट दास के ऊपर गुस्सा आया and said, और कहा, "Therefore take the talent from him and give it to the one who had 10 talents." इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। Many people, they don't know that they are pastor. बहुत लोग यह नहीं जानते कि वे पासबान हैं। You might have one sheep, आपके पास शायद एक भेड़ हो, एक आत्मा हो, or you might have one goat, या फिर आपके पास एक बकरा हो, Yeah. एक बकरा हो सकता or है, you might have flock. या आपके पास पूरा झुंड हो सकता है। But if you are not doing faithfully the work of God, लेकिन यदि परमेश्वर का काम आप विश्वास योग्यता से नहीं कर रहे हो, as this to the evil servant Lord said, जैसे इस दुष्ट चाकर को प्रभु ने कहा, we too might hear this. हम भी शायद यही शब्द सुनेंगे। Take the talent from him and give it to the one who had 10 talents. उसके पास से वह तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़ा है उसे दे दो। Take that wife too from him उसकी पत्नी भी उसके पास से ले लो, and because he's not taking care of that talent. क्योंकि वह तोड़े के साथ तोड़े की वह संभाल नहीं रख रहा है। Without fail, I am every day praying for my children, my child, and for my people, my wife even. मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के लिए और मेरे लोगों के लिए मैं निष्फल हुए बिना निरंतर प्रार्थना करता हूँ। For I want more soul from another church. क्योंकि मैं दूसरी कलीसियाओं से बहुत सारे आत्माओं को पाना चाहता हूँ। When they stop doing the work of God, God is going to send those souls to the right church. जब वे परमेश्वर का काम करना बंद कर देंगे तो उन आत्माओं को परमेश्वर सही कलीसिया में लेकर आएंगे। Take the talent from that one who is a lazy fellow and give it to the one who is a faithful servant. जो आलसी चाकर है उसके पास से वह एक तोड़ा ले लो और जो विश्वास योग्य चाकर है उसको दे दो। Verse 29. 29वां For everyone who had more, he will be given. If you are growing or if you are training well, then God is going to give you more soul. क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। यदि आप अच्छे से संभाल रखते हो, तैयार करते हो उनको, तो आपको ज्यादा दिया जाएगा। But from the one who does not have, even what he has will be taken away from him. परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है वह भी ले लिया He जाएगा। didn't knew that I had one soul. वह उसने जाना ही नहीं कि मेरे पास एक आत्मा दिया गया And था, so that was being taken to the one who had many. और वह एक आत्मा भी ले लिया जाएगा जिसके पास ज्यादा है उसके पास दिया So when Lord जाएगा। is going to come, he is going to praise faithful one and he is going to scold the one who are lazy. तो प्रभु जब आएगा तो जो विश्वास योग्य चाकर है उसकी प्रशंसा करेगा और जो आलसी है उसे वह डांटेगा। Verse 30. तीसवा वचन, And he will throw the worthless slave into the outer darkness, in that place where will be weeping and gnashing of teeth. और वह निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल देगा जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। So the master is Jesus Christ. तो जो मालिक है वह यीशु मसीह है। The servants are all who are minister or author in the church. और जो दास है वे सारे सेवकाई के काम में लगे हुए और कलीसिया में जो सेवक है वह है। And according to their ability, और उनकी सामर्थ्य के अनुसार God give them soul to take care. परमेश्वर ने उनको आत्माएं दिए हैं उनकी संभाल रखने So के the लिए। talent is the treasure of God. तो जो तालंत है तोड़े है वह परमेश्वर का धन है। And the bank is the church. और जो सराफ है या बैंक है वह कलीसिया है। And the outside place, darkness, is the hell place. और बाहर का जो अंधेरा है वह नरक की जगह है। So the master, he gave to his servant the thing that he had already had as his treasure. तो मालिक ने अपने चाकरों को वही धन दिया जो मालिक के पास पहले से था। And the treasure was the people of God. और वह धन संपत्ति तो परमेश्वर के लोग हैं। Money is not, if you cannot compare with the people. पैसा की तुलना आप लोगों के साथ नहीं कर सकते। Because God, holy people are more precious than gold and silver. क्योंकि परमेश्वर के पवित्र लोग सोने और चांदी से भी अधिक मूल्यवान हैं। And so God said, Jesus Christ, ask people and I will give you in inheritance
for you. इसीलिए परमेश्वर ने यीशु से कहा कि तू मुझसे लोग मांग, प्रजा मांग, और मैं तुझे देश देश की प्रजा है विरासत में दूंगा। And so people are Jesus' treasure, तो लोग यीशु मसीह की संपत्ति है, not gift वरदान नहीं, and not even your good skill और आपके अच्छे हुनर या कौशल्य भी नहीं, and not the money, और पैसा भी नहीं। but God wants to take care of the soul. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप आत्माओं का ध्यान रखो। Amen. आमेन। So this is the truth and that's what we believe. तो यह सत्य है और यह हम विश्वास करते हैं। And do please again listen the message. फिर से मेहरबानी करके संदेश को सुनना। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Father, we come in Jesus' name. पिता, हम यीशु के नाम में आते We हैं। agree with your truth. आपके सत्य के साथ हम सहमत होते हैं। You are having treasure is your people, आपके पास आपका धन है और वह तो आपकी प्रजा है। and whom you saw faithful, you gave them the treasure to take care. और आपको जो विश्वास योग्य लगा उनको आपका धन आपने दिया संभाल रखने के लिए। And those who had trade and had used their time and ability, they had brought many souls to you. और जिन्होंने व्यापार किया और अपना समय और अपने योग्यता का उपयोग कर किया, वह बहुत सारे लोगों को आपके पास वापस लाए। We too want to be faithful servant like those. हम भी आपके विश्वास योग्य, उनके समान विश्वास योग्य आपके दास बनना चाहते हैं। Whatever soul you have given us, आपने जो कोई लोग आत्माएं हमको दिए हैं, we want to take care of them. हम उनकी संभाल रखना चाहते हैं। And we want to equip them, train them well so that they go out and preach your word and bring other souls. हम उनको मजबूत बनाना चाहते, तैयार करना चाहते, ताकि वे बाहर जाए और दूसरे बहुत सारे लोगों को लेकर आए। Give us grace. हम पर अनुग्रह करो। And if there is laziness, remove it from our life. और यदि हमारे अंदर आलसीपन है तो हमारे जीवन में से उसे दूर करो। If we have been found unfaithful, forgive us. और यदि हम अविश्वासी बने हैं आपके सामने तो हमें माफी दो। Give us grace. हम पर अनुग्रह करो। Give us your wisdom. आपका ज्ञान हमें दो। Till you return, we want that you call us faithful servant. आप वापस आ जाओ तो आप हमें आपके विश्वास योग्य चाकर कहो, ऐसा हम चाहते हैं। Yes, we pray, Lord. We pray. हाँ प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं। Give us grace. हम पर अनुग्रह करो। Thank you once again for your message. आपके संदेश के लिए फिर से एक बार आपका धन्यवाद। You have, in this parable, you have warned your people. यह दृष्टांत में आपने आपके लोगों को चेतावनी दी। You have warned your faithful servants. आपके विश्वास योग्य दासों को आपने चेतावनी दी। You have warned the people who are close to you. आपके करीब रहने वाले आपके लोगों को आपने चेतावनी दी। And from this parable, we understood that you know our ability. और यह दृष्टांत से हम समझे हैं कि आप हमारी क्षमता को जानते हो। And we don't compare with other people who are having 5 souls. और जिनके पास 5 आत्माएं हैं उनके साथ हम हमारी तुलना नहीं करते हैं। Those are great people. वे बड़े महान लोग हैं। And if we have received 1 soul, और यदि हमने एक आत्मा पाया है, give us grace to be faithful. तो उसमें भी हम आपके विश्वास योग्य बने रहे, उसके लिए अनुग्रह दो। Thank you, Jesus Christ, for your message. यीशु मसीह, आपके संदेश के लिए आपका धन्यवाद। Give us humbleness. हमें नम्रता दो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's continue to pray what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, hallowed be thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी Give हो। us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। And forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो, as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया। Lead us not into और temptation, हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका thy है, is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर In हो। Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen. Praise the Lord. प्रभु का महिमा Thank you हो। for watching. देखने के लिए धन्यवाद। Share it. इसे बढ़ाते जाओ। Amen. आमेन। प्रेज़ गॉड।